Hello and welcome to the next episode on our podcast, The Roadways. Before I jump into the guest details and about the episode, I would like to talk about something that I came across a few days back. So, I'm actually trying to get the interior done for my flat that I've recently purchased, and I was just searching online about doors and windows, and तब मैंने Google पे when I was searching, so I got to know कि this is the least interesting market and it's very hard to find stuff online or on social media on any platform. So then I thought about researching a little more, and I found a blog on Quora where there's a person who has been writing about doors, windows and its basics from 2013. So I reached out to him. I just wanted to check with him if he's willing to come on a podcast and he can share all his knowledge and why is he interested into this industry. Because हम कोई भी, even if you or me or anyone in our family, we never talk about doors कि कौन से लगवाने चाहिए and windows. We just give out the contracts to the architects and they do it for us. So doing all my research, I found out about Shivendra Pratap Singh. He has been writing a blog on door windows basics since 2013, as I mentioned, and I am pleased to announce that he accepted my request, and today we have him as a guest on our podcast. Welcome, Mr. Shivendra. How are you doing today? Thank you. I'm doing excellent, and it's a good to be here. And not renowned. I am just a simple guy. It's my passion because I spent more than 20 years in this industry. So most of the time, when I started my career, you know, there are two challenges in this industry. एक तो सबसे बड़ा challenge है, it's a low interest category. When you say door window, you know people take interest, people can't flaunt it. You can flaunt your car, but if you talk about building or house, you can flaunt your bathroom fittings, particular brands fittings I am using. You are using Italian marble, you can flaunt other stuff of your house, your chair, your home furniture, lightning. But unfortunately this industry has only one brand कि मैंने इस brand की door window लगाई है. But nobody tell ki what is your requirement, because the best part of this, or I would say the most important part, कि हर client की requirement अलग है. बिल्कुल है सर. Right? अब मेरा घर, I live near roadside, right? So I face traffic problem. Sometimes we don't know that we have a problem. As I said, it's a low interest category. आप डायग्नोसिस जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यू आर हैविंग सम डिसीज, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम है तो आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, राइट? Correct. So that's what I found a gap, that knowledge sharing was not there. There is all technical jargon. When we say door window, लोग बात करते थे. अब डॉग बार्किंग प्रॉब्लम है. अब एक सिंपल सा पॉइंट है कि people have a problem while sleeping. People have a stress because if you can't sleep properly, your immunity will not be proper. Okay. आप एक प्रॉपर तरीके से सो नहीं सकते. अब उसका क्या है कि मैंने कई कस्टमर देखे हैं कि सर हमारी नींद तुरंत खुल जाती है, राइट? हल्के से भी शोर से उनकी नींद खुल जाती है. अब आपने जो डोर विंडो सजेस्ट करा है वो आपके फ्रेंड ने सजेस्ट करा है, बिकॉज ही इंस्टॉल्ड दैट डोर विंडो इन सम प्लेस वेयर देयर इज नो नॉइज प्रॉब्लम. Okay. अब उनको पैरासीटामोल पसंद आई, दैट मेडिसिन, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको भी वो पसंद आएगी, राइट? तो वो प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ जो स्लाइडिंग विंडो लगी है दैट्स नॉट नॉइज प्रूफ. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो कोई मेजरिंग स्टिक नहीं है. व्हेन यू बाई ए कार, यू चेक माइलेज, यू गो फॉर टेस्ट ड्राइव. बट अनफॉर्चुनेटली, एज आई सेड, इट्स ए लो इंटरेस्ट कैटेगरी. पीपल कांट फ्लॉन्ट, पीपल जस्ट सी द ग्लास. आई एम श्योर बिफोर रिसर्चिंग दिस आपको भी ये कैटेगरी पता ही नहीं होगी कि ऑनेस्टली सर, Yeah. बिल्कुल भी. आई वॉज इवन नॉट इंटरेस्टेड कि जो लग जाए ठीक है, कि कौन ही ध्यान देता है इस पे. बट आई जस्ट थॉट कि जब सब चीज़ें सर्च कर रहे हैं, व्हेन वी वांट कि इंटीरियर सब कुछ A1 हो, तो व्हाई नॉट सर्च अबाउट दिस एज वेल. राइट. But sir, so whatever points you have discussed, sir, we'll talk about in detail. But before that, I would like to know कि आपका interest कैसे in how did you get into this industry, door windows basics, and why did you start with a blog? See, I started my career in 2006.
I joined a glass company. That was a job. I would not see. As I put in my blog itself, I will not promote anyone. Yeah. Because I am an entrepreneur running my own business, but I don't want to promote that brand here. Okay. So the point is, I just want to create awareness. Once people know, then they will start comparing. Then they will choose the right product. पॉइंट यही है कि मैंने जैसे आपको ओवर द फोन भी बोला, डिस्कशन स्टार्ट होना चाहिए, लेट पीपल शुड स्टार्ट, एंड आई एम हैप्पी दैट someone from like Roadway Group has called me up, and I got an opportunity to discuss it here. So I started my career in 2006 from a glass company. I worked there for 3 years. So that was quite fascinating, because when we see a glass, to glass, it create illusion of more space. Yes. That's the dictionary definition of glass. But same time, it brings unwanted noise. It brings cold in winter. It brings invisible heat during summer. So these are the, और thermal insulation, जैसे मैं जैकेट वियर कर रहा हूँ, आपने भी वुलन क्लोथ से रखे हैं, तो ये आपकी बॉडी वार्म करते हैं. तो सेम ग्लास में भी ऐसे ग्लासेस आते हैं जो आपके घर को वार्म रख सकते हैं विंटर में, और समर में आपकी घर को कूल रख सकते हैं. सेम ग्लास, मतलब वन ग्लास इंस्टॉल करेंगे, वो समर में उसको ठंडा रखेगा. यस, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ये कंट्रोल हो सकता है और हो रहा है. You can control. This is called, this is used in high-end buildings. Like I was part of DLF Camellias project. So during my job, so that project is Camellias the same project जहाँ पे 190 करोड़ का पेंट हाउस बिका है अभी. Yes. तो वहाँ की ग्लास डोर्स एंड ग्लास सब आपने. I am on to only. I will talk only about door window. I don't know the 190 crore thing. But the point is कि जो door window वहाँ लगी हुई हैं, वो अपने आप में मैं कहूँगा कि 100 साल की प्लानिंग से लगी है. Okay. Why? Because see that area, if you have been to Camellias location, वहाँ पर काफ़ी रोड पे ट्रैफिक रहता है, और वहाँ पे एक यू टर्न भी है, आई थिंक वहाँ पे एक टर्न भी है. सो वहाँ ट्रैफिक नॉइज भी बहुत है. तो जो अपार्टमेंट ट्रैफिक के पास है, G+4 जो ग्राउंड फ्लोर पे, उसमें डिफरेंट ग्लास लगा है. दैट इज ए डीजू लैमिनेटेड. डीजू इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्लासेस, जैसा कि आपने एक्सपीरियंस करा होगा दिल्ली मेट्रो में डीजू ग्लास रहता है. ये ग्लास आपके घर को वार्म रखता है. जैसे कि मैंने ये जैकेट पहन रखी, मेरी बॉडी को वार्म रख रही है, तो विंटर में मेरा घर वार्म रहेगा. ओके. आप जैसे यूरोप जाएं तो आप देखते हैं कि लोग अपने ओवरकोट्स बाहर ही टांग देते हैं. हाँ जी. घर में टी शर्ट्स में रहते हैं. करेक्ट. ऐसा नहीं है कि घर में ठंड खत्म हो जाती है, दे मेंटेन द टेम्परेचर. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये एनर्जी क्रेडिट रेटिंग या कोई चेक नहीं होता, क्योंकि देयर इज़ द, वहाँ माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो उनको दे नीड टू कंट्रोल देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल, दे नीड टू कंट्रोल द मटेरियल. तो अभी हमारे यहाँ क्राइसिस उस एरिया में नहीं है. तो थर्मल इंसुलेशन इज़ ए मेजर, वहाँ काफ़ी रिसर्च हुई है यूरोप में. ओके. तो कैमिलियास पे ही बात करें तो थर्मल इंसुलेशन के लिए दे यूज़ डबल ग्लेज ग्लास. और जो रोड साइड अपार्टमेंट हैं, जहाँ क्योंकि जितने आप ट्रैफिक नॉइज़ में क्या होता है कि जितना आप रोड के पास होंगे या ट्रैफिक के पास होंगे, उतनी नॉइज़ ज़्यादा आएगी. सोर्स से जितना दूर होंगे नॉइज़ कम हो जाएगी. तो G+4 तक एक डिफरेंट ग्लास कॉम्बिनेशन है, और ऊपर अलग है. इवन जो स्लाइडर, आपके घर में भी स्लाइडर होगा सबके ग्लास, वो स्लाइडर ऐसा है कि वो एयर टाइट हो जाता है बंद करने में, वैसे लिफ्ट एंड स्लाइड कहते हैं. अगेन आई विल नॉट नेम द कंपनी, बट आई विल टेल यू दैट प्रोडक्ट इज ए लिफ्ट एंड स्लाइड. हर कंपनी के पास है वो प्रोडक्ट. उससे गैस्केट सील हो जाती है. इफ़ यू हैव ट्रैवल टू रैपिड मेट्रो ऑफ दिल्ली, उसमें भी गैस्केट वाला स्लाइडर लगा हुआ है. दैट इज मोर एयर टाइट देन कंपेयर टू दिल्ली मेट्रो. ओके. तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि नॉइज़ इंसुलेशन है, थर्मल इंसुलेशन है, विंड प्रेशर उसमें कैलकुलेट करा गया है कि पिछले 100 साल में गुड़गांव में कितनी तेज़ हवा आई थी. क्या वो 100 किलोमीटर, जैसे नॉर्मली 200 किलोमीटर पर आवर, या इसको हम अपनी लैंग्वेज में पास्कल में कैलकुलेट करते हैं, मैं टेक्निकल नहीं जाऊँगा. तो 200 किलोमीटर पर घंटा की विंड प्रेशर को कंसिडर करके ग्लास लगाए गए हैं और बिल्डिंग को डिज़ाइन करा गया है. तो हर चीज़ में उन्होंने एक और डिटेलिंग करी है. मतलब अगर आप आज के पर्सपेक्टिव में कि अगर मेरे घर में एक घर बन रहा है और मैं एक 50 लाख का अपार्टमेंट लगा रहा हूँ और उसमें 2 लाख की विंडो लगा रहा हूँ, और अगर मैं उस स्पेसिफिकेशन पे लगाऊं कैमिलियास पे, तो मेरी कॉस्ट 4 लाख हो जाएगी. बट सेम टाइम वो 4 लाख आपके घर को वार्म रखेंगे, हेल्प करेंगे वार्म करने में. वो 4 लाख आपके घर में आपकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, स्ट्रेस नहीं होगी, नॉइज इंसुलेशन रखेंगे. वो 4 लाख आपके घर को बर्गलर प्रूफ रखेंगे कि चोर नहीं आ सकता, ग्रिल नहीं लगाने की ज़रूरत है. अब आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि कार की विंडशील्ड होती है, वो टूटकर ड्राइवर और को पैसेंजर पे नहीं गिरती, राइट? बिकॉज इट हैज़ ए लैमिनेटेड ग्लास इन बिटवीन.
द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू बर्गलर रेजिस्टेंस ग्लास. ग्लास थोड़ा मोटा कर दिया जाता है, बट मैं वही कह रहा हूँ कि डिस्कशन ऐसा होना चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है. करेक्ट. तो मेरा पैशन यहीं जागा कि देयर इज अ गैप इन द इंडस्ट्री. पीपल आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स. इवन ज़्यादातर अगर आप देखो सोशल मीडिया, पीपल से माई कंपनी इज नंबर वन, माई कंपनी. सी, वी डोंट नीड नंबर वन, वी नीड टू, सम पीपल नीड टू अंडरस्टैंड माई रिक्वायरमेंट. इफ माई हाउस इज स्मॉल और मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो क्या करूँ? स्लिम सिस्टम लगाऊँ. बट स्लिम कर दिया तो मेरे यहाँ सामने रात को पार्क है, उसमें जागरण होता है, डीजे हो रहा है. हाउ कैन आई स्लीप इन दैट एरिया? या मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, कैन आई वर्क फ्रॉम होम विद नॉइज इंसुलेशन? या नहीं है तो मैं कैसे सो पाऊंगा? या कई ये टॉपिक, मतलब मैं आपको वही बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोडक्ट होना चाहिए रेदर देन क्लेमिंग कि आई एम द बेस्ट, आई एम द. Got it, sir. So that created me a passion to write something, whatever I learned. So it has been appreciated. That blog is like more than 3 lakh views. And I am Great. writing before ChatGPT. So just to mention, तो एक पैशन था, जो भी मैं सीखता था मैं लिखता रहता था. एंड आई ट्राइड कि मेरे जॉब में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो. मैंने इसलिए उसमें किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करा. आई ट्राइड टू शेयर नॉलेज, और इट्स ए काइंड ऑफ जनरल, मैं अपनी नॉलेज इन्हांस करने के लिए लिखता था कि मैं भी कल को कुछ भूल जाऊं. आई विल गो टू द ब्लॉग एंड कि हाँ ये होता था. सो यू नो, सो व्हेन आई जॉइंड ए ग्लास कंपनी, देन आई जॉइंड ए यूपीवीसी कंपनी. यूपीवीसी इज अ डिफरेंट मटेरियल. जैसे आप वुडन की खिड़की होती है, जैसे आपके स्टूडियो में वुडन के लगे. Correct. सो देयर इज ए यूपीवीसी विंडो which is kind of a plastic. So वो विंडो यूज करी जाती है उसमें. देयर आई वर्क फॉर 8 years. देन आई वर्कड इन एल्युमिनियम कंपनी. 3 years आई वर्क देयर. सो डिफरेंट जर्नी होती रही, बट आई हैव चूजन द पाथ कि आई विल वर्क ओनली इन दिस इंडस्ट्री. आई विल ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स और ट्राई And टू you'll keep sharing that knowledge through your blog. फ्री. Yeah. देयर इज नो, मैंने इतना होते भी कभी उसे ब्लॉग को प्रमोट करने की कोशिश नहीं. आई नेवर ट्राई टू learn by Google AdWords. I never tried to earn by anything. So because purpose यही है कि people should know about this product. This is a wonderful product that can bring peace of mind. हम सोच भी नहीं सकते रोहन जी, डोर विंडो हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है. You won't notice once you will notice only once it create problem. कि जैसे 32 teeth हैं, आप डेंटिस्ट को तभी याद करेंगे जब दांत में प्रॉब्लम होगी. Correct. Otherwise you never notice. Otherwise you will notice only aesthetically अच्छे लगे. राइट. तो वो एक यही टॉप, तो ये पैशन था राइट करने का, और दैट स्टार्टेड माय जर्नी. And sir, why do you feel कि people are not interested in this market? Why don't they talk about it? Because why आज, as we mentioned before as well, कि what is happening is कि contractors को contract मिल जाता है, वो अपनी मर्जी से जो लगा देते हैं, कोई question नहीं पूछता है क्यों नहीं. तो why do you feel कि ऐसा क्यों हो रहा है कि why are people, if they are looking at beds कि हमें ये वाला बेड चाहिए, हमें ये वाला सोफा चाहिए, तो why not windows, doors, इन सब के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? It will take time. If you see how this industry evolved globally, अगर आप देखें तो टाइम लगता है. इंडिया एज ए सोसाइटी, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि वी आर ए रिएक्टिव कंट्री. Okay. I'll give you an example in another industry. There was an accident happened on Charkhi Dadri. Okay. The 2 plane crashed. और उसमें क्या हुआ था कि एज आई नो बाई विकीपीडिया, यू कैन आल्सो सर्च, कि एक प्लेन कजाकिस्तान एयरलाइंस का था, एक सऊदी अरेबिया एयरलाइंस का. वन इज टेकिंग ऑफ, वन इज लैंडिंग. Okay. सो व्हाट हैपेंड, द कजाकिस्तान एयरलाइन वाज स्पीकिंग रशियन. सो दैट डे द इंटरप्रेटर वाज ऑन लीव. तो नोबडी वाज, ही उसको जो हाइट बोली वो मेंटेन नहीं करी. तो बोथ द प्लेन कोलाइडेड. What happened after that? All the planes in India has a anti-collision device या sonar system है, कि जैसे ही plane पास आएंगे तो plane warning system will be activated. So India is the I think 4th या 5th country है जो world में हर airport पे implement कर दिया गया है. Okay. That was I would say कि reactive. It was a reactive measure. अब आप एक example, तो what happened कि accident होते हैं तो लोग एकदम से उसको example लेते हैं. जैसे एक मैं आपसे अभी ब्लॉग से पॉडकास्ट से पहले डिस्कस कर रहा था कानपुर मैन का. आपने बताया दैट वाज लाइक ए बर्निंग इशू कि एक कानपुर बिजनेसमैन थे. दे पुट ए वेरी हाई एंड सिस्टम फॉर इंटीरियर. जैसे आपने लकड़ी का डोर लगा रखा है. करेक्ट. दे पुट ए ग्लास डोर ऑल सारे घर में लगाया. अब नॉर्मली क्या होता है, जब हम दरवाजा ग्लास का लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी रहे. देयर शुड बी सम की लॉक. अब की लॉक में प्रॉब्लम है कि आइदर यू हैव टू हैव ए मास्टर की, या फिर आप अलग अलग लॉक रखेंगे तो फिर कितनी चाबियां मेंटेन करेंगे.
अब मास्टर की रखेंगे तो प्राइवेसी नहीं रहेगी, कोई भी कभी भी आ कोई भी जाएगा। कभी भी आ सकता तो है। क्या करा जाए? तो दे एवरीवन इज लुकिंग इंस्टाग्राम, एवरीवन इज लुकिंग डिफरेंट सोर्सेज। हाँ, बायोमेट्रिक लॉक्स लगा लेते हैं। बायोमेट्रिक लोग। बायोमेट्रिक लॉक लगाया, what was the feature in it? Face ID was there and there is a keypad. कीपैड, तो ये पिन। हाँ, तो दिवाली की रात का या उससे एक दिन पहले की घटना है, इसी साल की है। और हुआ क्या कि पूजा में अखंड दीपक जल रहा था, जलते हैं। उससे आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, लाइट चली गई और पूरे घर में धुआं फैल गया। अब नॉर्मली केसेस में जो अगर फायर से इतना नुकसान नहीं होता जितना धुएं से होता है, दम घुटने से। तो हुआ क्या, जब बेडरूम तक गई है, दे वर अलोन एंड देयर रूम्स, सो पूरे रूम में धुआं हो गया था, लाइट काम नहीं कर रही थी। तो दे ट्राई टू डू द फेस आईडी, बट ड्यू टू स्मोक वो पहचान। सो दे एकदम से जल्दबाजी में वो कोड नहीं डाल पाए एंड बोथ डाइड बाय, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। एंड द पॉइंट इज कि टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, बट वी शुड नो द कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर मैं ये प्रोडक्ट लगा रहा हूँ तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये फेल होगा तो मैं क्या करूँगा। डू आई हैव ए एग्जिट प्लान? आप किसी मॉल में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो यू ऑलवेज सी द फायर एग्जिट प्लान क्या है। करेक्ट। लिफ्ट नहीं काम करी, हाउ विल यू गो, मोक ड्रिल करी जाती है। सो वी शुड नो कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसके बाद क्या करना है। तो मैंने आपको बोला जैसे एक्सीडेंट हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली एज आई सेड इट्स लो इंटरेस्ट कैटेगरी, लोग Yes. पढ़ के भूल गए। हाँ, पढ़ के भूल गए। तो बट एक इवेंट थी जिसको प्रिवेंट करा जा सकता था विद ए प्रॉपर इंफॉर्मेशन कि आप बायोमेट्रिक लॉक लगा रहे हैं तो फेल भी हो सकते हैं इन केस ऑफ फायर या स्मोक है, तो हाउ विल यू गेट आउट। जैसे कि अगर ऐसे लॉक्स लगते हैं यूरोप में तो देयर इज ए ऑटोमेटिक भी एक डोर लगता है, जैसे स्मोक अलार्म बजा तो वो वेंटिलेशन सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। सो वी हैव ए हाफ बेक्ड नॉलेज। तो मतलब हमने डोर्स तो सिक्योर करवा लिए, बट Right. वी डिडंट यूज दी अलार्म सिस्टम, वेंटिलेशन Yeah. सिस्टम की ऑटोमेटिकली कुछ खुल जाए सो दैट Yeah. कि वो तो दोनों मैं बच आपको ये पाए। बता रहा हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल ही सेट करेंगे कि इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जाएगी। बट मैं नहीं चाहता कि ह्यूमन लाइव्स आर वेरी प्रीशियस, ऐसा हो किसी के साथ, भगवान ना करे। अगर हम एक एग्जाम्पल लें किचन की विंडो का, किचन की विंडो में क्या होता है बेसिकली, अगर आप देखें जैसे मैंने बोला ये लो इंटरेस्ट कैटेगरी है। करेक्ट। दो जगह आदमी बहुत इन्वेस्ट करता है, मतलब किचन और पूजा रूम। अब किचन में क्या है कि एक चिमनी, कैब, मॉड्यूलर किचन, ये कॉमन हो गया है, राइट। अब किचन में बेसिकली क्या है कि हम लोग चिमनी लगाते हैं। अब चिमनी स्टार्टेड फ्रॉम यूरोप, मोस्ट ऑफ द कंपनी चिमनी जो बना रही हैं वो यूरोपियन ब्रांड है। बट अगर आप यूरोप की फूड हैबिट्स देखें तो वहाँ क्या करा जाता है, फ्रिज में से निकाला, गर्म करा, हो गया। वहाँ कोई दाल तड़का नहीं बन रहा, वहाँ कोई वो नहीं बन रहा। तो हम लोगों को चिमनी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा और लेता हूँ कि जो मुझे स्मोक को बाहर करना है और चिमनी की जो कैपेसिटी है उसमें फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हर चीज़ की सक्शन कैपेसिटी होती है। इवन अगर आप बाथरूम में एग्जॉस्ट लगा रहे हैं वो भी सक्शन कैपेसिटी और रूम साइज के हिसाब से आते हैं, राइट, कि कितनी वो हवा खींच रहा है। तो सेम चिमनी की बात है। अब क्या है, मैं अभी आपको आज मैं एक रील देख रहा था, एक कोई था वो प्रमोट कर रहा है कि विंडो जो है वर्टिकल स्लाइड हो जाती है, कि अगर आपकी ओपनिंग 4 फुट हाइट है और 2 फुट विड्थ है तो विंडो को आप ऊपर स्लाइड कर दीजिए तो आपको 2 फुट की 2x2 की ओपनिंग मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है। स्लाइड करने से क्या फ़ायदा होता है रोहन जी, कि आपको एक एडवांटेज ये रहता है कि आपकी ओपनिंग छोटी नहीं हो रही। जैसे आपका ये स्टूडियो का डोर है, ये जब खुलता है तो उतना एरिया ब्लॉक हो जाता है। या आप कार के दरवाजे से समझें तो कार का दरवाजा जहाँ खुलेगा तो आपको देखना पड़ेगा किसी से टकरा तो नहीं रहा, करेक्ट, तो वो एरिया ब्लॉक हो गया। तो जब स्लाइडिंग विंडो होती है तो वो इनलाइन रहती है। कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, बट आपको किचन में 2 फुट बाई 2 फुट की ओपनिंग मिल रही है। अब जैसे मैंने बोला कि चिमनी सक्सेसफुल नहीं है, वेंटिलेशन ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए नॉर्मली अच्छे आर्किटेक्ट्स किचन में वाइड विड्थ रखते हैं, हाइट कम रखते हैं, जिससे ओपनिंग लार्ज मिल जाए, राइट। अब आपने 2 फुट बाई 2 फुट की इंटरनेशनल लॉ है कि फायर फाइटर्स के लिए जहाँ भी, जैसे अभी एक सीरीज आ रही थी अमेजोन प्राइम पे, अग्नि, मैंने कल ही देखी है सर रात तो उसमें वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था। दैट वाज ए वेरी गुड कंसेप्ट कि आपको पेरेंट्स को पागल बनाना होगा, हाँ, कि घर से बाहर निकले, पानी, गैस और लाइट बंद करके। बहुत अच्छी बात है। करेक्ट। अगर आप देखें तो पानी, गैस दोनों किचन ही है मेन सोर्स। तो किचन में आपने ओपनिंग बना दी 2 फुट बाई 2 फुट की, ये विंडो लगा दी, एक बहुत बड़े ब्रांड की आपने लगा दी विंडो, और
आप सोचिए कि रूल इंटरनेशनल ये है कि फायर फाइटर को घुसने के लिए हर फ्लोर पे 2 फुट बाई 4 फुट की ओपनिंग मिलनी चाहिए। अब ये कोई इंप्लीमेंट करा नहीं है, क्योंकि जो हमारे स्टैंडर्ड हैं वो अभी बड़े नेसेंट स्टेज पे हैं। मैंने बोला है लो इंटरेस्ट कैटेगरी लो है, इंटरेस्ट कैटेगरी है। अभी तक कोई इंसिडेंट इतने मेजर रोल नहीं हुए कि ग्लास टूटे हैं, भगवान ना करे ऐसा हो। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने अभी इस चीज़ को इतना नहीं इंप्लीमेंट करा है, प्लस इट विल टेक टाइम टू मैच्योर द इंडस्ट्री, क्योंकि पूरी तरह से अगर यूरोप को कॉपी कर देंगे तो प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा। करेक्ट। तो आम आदमी की पहुंच तक भी पहुंचना चाहिए। तो जैसे किचन में आपने 2 फुट बाई 2 फुट की ओपनिंग बना दी, वेंटिलेशन कम हो गया, फायर फाइटर नहीं आ सकता इन केस ऑफ स्मोक, तो कई चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर ब्रांड की जो नंबर 1 ग्लोबली है मेरे लिए काम करेगा। मुझे प्रोडक्ट वो चुनना चाहिए जो मेरे लिए रिक्वायरमेंट है। तो आप एक कार तक, जैसे मैंने आपको बताया, माइलेज देखते हैं, शोरूम देखते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, फ्रेंड से रेफरेंस चेक करते हैं, टीम BHP या ब्लॉग्स पढ़ते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप डोर विंडो के लिए इतना सीरियसली नहीं लेते। आपको लगता है कि सब एक जैसे हैं। करेक्ट। ये लग्जरी है, बस मेरे लिए सिंबल ऑफ पीस है कि मैंने ये ए ब्रांड की लगा दी, देखो जी मैंने ए ब्रांड की विंडो लगाई। नहीं जी, ए ब्रांड की विंडो साउंड प्रूफ नहीं हो सकती। आपको देखना चाहिए आपके यहाँ डॉग बार्किंग तो नहीं है। अब एक एग्जांपल देता हूँ। एक मैंने कस्टमर का घर का एक कॉर्पोरेट ऑफिस करा था। अब उनका था नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, हैवी ट्रक्स आते हैं, प्लस क्या वहाँ पे काफ़ी पंचिंग प्रेस लगी हुई हैं, उनके हैवी नॉइज आता है। अब वो रहते थे वसंत विहार। अब वसंत विहार में जहाँ रहते थे, जिस लोकेलिटी में, वहाँ नॉइज नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ डॉग बार्किंग की है, वो एड्रेस हो गई। अब जब सब काम कंप्लीट हो गया, बोले कि मैं तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता, इतनी साउंड आ रही है। तो उन्होंने वसंत विहार वाले सेम मटेरियल वहां लगा दिया। यस, सेम डिजाइन, okay. आर्किटेक्ट सेम था, उसने वही चीज रिपीट कर दी। और वो इतने परेशान कि मैं इतना खर्चा कर लिया, और सही जेन्युइन बात है भाई, मैं अपने को अपग्रेड कर रहा हूँ या डिग्रेड कर रहा हूँ? भाई मैंने वसंत विहार में घर है और मैं इतना प्रोमिनेंट, दैट कंपनी इज ए, मतलब इंडिया में मेडिकल इक्विपमेंट में काफ़ी, आई थिंक टॉप 3 में आती है वो कंपनी। मैं नाम नहीं लूँगा, बट उस कंपनी ने, रोहन जी, उसने लगाया, बाद में डोर विंडो में सॉल्यूशन दिया मैंने, तब वो सेटिस्फाई हुए। तो आपको यही बता रहे हैं, छोटी छोटी बातें हैं, सिर्फ अवेयरनेस करना है, देन पीपल शुड चूज। और मैंने बोला एंड नॉट नेसेसरी कि टॉप ब्रांड ही हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएगा। जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा पैसा खर्च होगे तभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। मे बी अ रिक्वायरमेंट इज समथिंग एल्स, हमारे शायद कम ही पैसे लग रहे हैं। बिल्कुल सर, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी, सो वी अंडरस्टैंड, वी बोथ नो कि पीपल डोंट लुक इनटू दिस कैटेगरी, डोर्स विंडोज जो लग जाएं ठीक है, जस्ट ब्रांड का लगवा दिया, नहीं लगवाया। बट इज इट एक्चुअली कॉस्ट इफेक्टिव, या डज इट एक्चुअली, मतलब हमारे जब लेट्स से आई एम गेटिंग द इंटीरियर डन, तो हाउ मच इट अफेक्ट्स माय कॉस्ट इफ आई एम चूजिंग द डोर्स एंड विंडोज एज वेल, लाइक आई एम चूजिंग ब्रिक मोटर एंड ऑल अदर स्टफ? कॉस्ट कंपैरिजन, लाइक, राइट? या देखिए, जैसे मैं एक 2 बेडरूम हॉल किचन घर ले रहा हूँ, तो आप समझिए कि नॉर्मली अगर मेरे घर की फ्लैट की कॉस्ट 55 लाख 75 लाख आ रही है, तो डोर विंडो की कॉस्ट एक अच्छी क्वालिटी की, एरिया जो डोर विंडो का होता है नॉर्मली घर का 30% होता है, वॉल विंडो रेशियो कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे कि 30%, जैसे अगर आपका घर 1000 फुट का है तो 300 फुट का डोर विंडो का एरिया होगा। ओके। तो एक अच्छे ब्रांड की, अब इसमें भी कैच है। कैच क्या है कि आप सोचिए, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं भी कभी कभी बड़ा सिचुएशन, मेरी बड़ी बेटी है, तो मेरी वाइफ का जो बेडरूम है उसमें कोई विंडो नहीं है, ओनली डोर्स हैं। एंड यू नो माई डॉटर इज 12 years ओल्ड, और उसका हाइड्रोक्सी डी लेवल 10 आया, लेस देन 10। Okay. जबकि एक आदमी का विटामिन डी लेवल 30 से 100 के बीच होना चाहिए, राइट। तो लेस देन 10 इज ए डेंजर लेवल। डॉक्टर ने बोला कि अगर आपने प्रॉपर नहीं रखा, इसने फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करी, तो यू नो इन फ्यूचर उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा, इसकी हाइट रुक जाएगी, प्रॉब्लम आएगी। और इट्स ए कॉमन फिनोमेना। जब मैं इसमें गया, डॉक्टर्स बोले परेशान मत होइए, 10 में से 6 लेडीज को आपको मिलेगा, क्योंकि वो घर में रहती हैं, विंडो ही नहीं है। तो आप ये सोचिए कि आप घर डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि क्या वहाँ नेचुरल डे लाइट आ रही है। डे लाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट रहती है। एक आप, तो जैसे आप पूछ रहे हैं प्राइस पे कॉस्ट इफेक्टिव में, तो अब मैं अगर ऐसा घर ले रहा हूँ जहाँ डे लाइट आ रही है, बट क्या वहाँ उस एरिया में ट्रैफिक नॉइज आ रही है? तो अगर मैं नॉइज इंसुलेशन पे जाता हूँ, तो
मेरे ब्लॉग में भी आप पढ़ सकते हैं कि कई ग्लास थिकर लेके, जितना आप मोटा ग्लास लेंगे वो उतना साउंड रोकेगा। सिंपल साइंस है, करेक्ट। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल, जितना आप मोटी दीवार करेंगे उतना साउंड रुकेगा, जितना मोटा ग्लास करेंगे साउंड ज़्यादा रुकेगा। सिंपल बात है। दूसरी बात है कि जैसे मैंने बताया कार के दरवाजे में रबड़ लगी रहती है, राइट। तो वैसे ही अगर आप ओपनेबल विंडो लेंगे जिसमें रबड़ लगी हुई है, तो जैसे तो वो एक तो एयर टाइट रहेगा, आपकी एयर कंडीशनिंग लॉस कम हो जाएगा, साथ में नॉइज इंसुलेशन हो जाएगा, दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं आपको। तो गैस्केट वाला दरवाजा लगाएंगे जो कि नॉर्मली यूपीवीसी एल्युमिनियम दोनों में मिल जाता है। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि प्राइस डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। पर अगर आप एक अच्छे ब्रांड की विंडो लेते हैं, तो अगर 75 लाख का घर खरीद रहे हैं, तो अगर 1000 फुट एरिया है और 300 फुट विंडो का एरिया है, तो 3-4 लाख रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए। ओके। एक आपकी रिक्वायरमेंट को रखते हुए, मतलब मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूँ। अगर प्रीमियम करेंगे तो फिर कैमिलियर्स की भी स्पेसिफिकेशन है आपके पास, तो वहां तक भी जा सकते हैं। नहीं सर, आई जस्ट वांटेड टू नो कि ओवरऑल बजट पे कितना इफेक्ट पड़ता है। कि अभी हम जैसे आर्किटेक्ट से ये सब डिस्कस नहीं करते हैं, एंड लेट्स से कि सब कुछ लोग इंस्पायर होके ट्राई करना स्टार्ट करें कि हम खुद अपने डोर विंडोज चूज करेंगे, तो ओवरऑल बजट पे कितना, मतलब 5-10-15% कितना चेंज? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि नॉर्मली डोर विंडो जो लोकल मार्केट में अवेलेबल होती है, जैसे अभी एक आपके यहाँ है गौरव जी, उनसे मेरी बात हो रही थी, हरिद्वार में घर बनाया, बट हमें कैसे ढूंढें? अगर ऑनलाइन है तो भरोसा नहीं है, ऑनलाइन में आजकल डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, बहुत है सर। तो ऑनलाइन पे लोग भरोसा नहीं करते। अब ऑफलाइन करें, ऑफलाइन में मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इस लोकेलिटी में है नहीं है। तो देखिए, इसीलिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और मैं आप फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला आपके जरिए, कि डिस्कशन स्टार्ट होना चाहिए। लोग जानेंगे, लोग लिखेंगे, तो लोगों को ऑप्शन मिलने लगेंगे, क्योंकि ऑप्शन है आपके आसपास ही। पर हो क्या रहा है कि डिस्कशन नहीं है, तो वो लिमिटेड है, रेफरेंस पे ही चल रहा है काम, कि कुछ पर्टिकुलर आर्किटेक्ट के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो नॉर्मली जो कॉस्ट लोग लगा रहे हैं 400-500 रुपये फुट की लगा रहे हैं। यानी अगर आप 300 फुट है, मैं फिर कह रहा हूँ 1000 फुट एरिया है 2 बेडरूम हॉल का, और या 1100 फुट एरिया है, और आपकी 350 या 400 फुट की डोर विंडो लग रही है, तो जो कॉस्ट आ रही है वो 1.5 लाख रुपए आ रही है, राइट। और अगर आप एक हाई एंड लगाते हैं तो वो 1.5 लाख से कॉस्ट आपकी 3 से 4 लाख रुपए हो जाएगी, 2 लाख एक्स्ट्रा हो जाएंगे। बट उसमें क्या होगा, डे लाइट तो आएगी आपके घर में, ट्रैफिक नॉइज नहीं आएगी, राइट। विंटर में आपका घर वार्म रहेगा, समझे सर। घर में जैकेट पहनने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी रजाइयाँ ओढ़ने की जरूरत नहीं है, आप घर में ऐसे ही घूम सकते हैं। आई मीन टू से यू कैन वियर लूज क्लोथ्स। आप समर में आपके घर में एयर कंडीशनर की लॉस कम हो जाएगा, 30-40% कंट्रोल हो जाता है। कैन यू बिलीव इट कि 30 से 40% हीट को कंट्रोल करा जा सकता है केवल ग्लास से। तो ये लगता है कि, बट ये IIT रुड़की ने स्टडी करी है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं कि एयर कंडीशनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं विद ग्लास। अब ग्लास ऐसा है कि अगर आपने डबल ग्लास लगाया है, सेम आप दिल्ली मेट्रो में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या आप कहीं भी हाई एंड होटल है, जैसे मैंने दी ओबराय होटल का मैं पार्ट था जो ओरिजिनल मथुरा रोड पे है, वहाँ पे बुलेट प्रूफ ग्लास भी लगाया है, वहाँ पे डीजू ग्लास भी लगाया है। तो रूम्स का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने स्पेसिफिकेशन दी थी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि नॉइज इंसुलेशन की बात करें हम। अब नॉइज इंसुलेशन में क्या है कि जैसे आपको प्रॉब्लम है, डॉग बार्किंग नॉइज है, तो हर इंटरनेशनल रूल, अब कैसे चेक करेंगे ये विंडो साउंड प्रूफ है? So noise insulation and soundproofing, are these the same concept or different? सेम साउंड। देखिए, साउंड दो तरीके की होती है। एक साउंड मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं 35 से 40 डेसिबल है। ओके। आप आईफोन iTunes स्टोर पे जाएं या एंड्रॉइड पे जाएं, डेसिबल नाम से आप ऐप सर्च करेंगे, n नंबर ऐप्स मिल जाएंगी, उन्हें आप अपने फ़ोन में एक्टिवेट करें, आप नॉइज़ लेवल अपने घर में मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो नॉइज़ लेवल जो है नॉर्मली, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ 35 से 40 डेसिबल है, अबव 50 नॉइज़ है, ओके। लेस 50 साउंड है। Above 50 noise है and less 50 sound है। हाँ, बट ये भी एक, अब इसमें भी कैच है, अबव 50 नॉइज़ है, बट बेडरूम में अबव 40 नॉइज है। बेडरूम में मुझे ज़्यादा पीस चाहिए, स्टडी रूम में मुझे ज़्यादा पीस चाहिए, तो जगह बदल रही है, तो इसलिए डेसिबल भी चेंज हो रहा है। यस। तो आप, कोई भी व्यक्ति, आम आदमी, ऐप डाउनलोड करे, मेरी ऐप नहीं है, मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग, आई एम नॉट गेटिंग फंड्स। डेसिबल ऐप डाउनलोड करिए, नॉइज लेवल अपने आप करिए, और देखिए आपके आउटसाइड नॉइज लेवल क्या है। मेजर सोर्स डोर विंडो होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नॉइज पे ही बहुत हैं, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी इस चीज़ में। आप, पैशन मेरा यही है। एक बहादुरगढ़ में क्लाइंट थे, यू वोंट बिलीव इट, कि उन्हें क्या था कि बहुत बड़े बिल्डर हैं,
उन्होंने घर बनाया पर वो सब हाई एंड विंडो लगा दी, सो नहीं पा रहे। मुझे आया ब्लॉग दिखा, लोग जब परेशान होते हैं तो डॉक्टर ढूंढते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट आई एम जस्ट लर्निंग, आई एम जस्ट ए स्टूडेंट, मैं अगेन मैं बोलूँगा। तो उन्होंने फ़ोन करा, मैं गया अपनी टीम के साथ, तो उन्होंने बहुत, जितना वो जानते थे, जितने कंपनीज थे, सब ने, कि उन्होंने डबल विंडो लगा रही थी। कैन यू बिलीव इट? एक विंडो के बाद दूसरी विंडो, कि एक से नहीं रुक रहा, दूसरे से रुकेगा साउंड। अच्छा। तो वो एक उन्होंने एक तरीके का बड़ा डबल ग्लेज क्रिएट कर दिया, बट फिर भी नॉइज नहीं रुक रही, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम थी कि एयर लीकेज हो रहा था। अब इतना मोटा ग्लास लग गया, डोल लटक गया, क्योंकि जिसने बनाया उसको इतने हैवी ग्लास का एक्सपीरियंस नहीं था। आप सोचिए कि गाड़ी में आपने टायर चेंज कर दिया और गाड़ी का वेट बढ़ा दिया, टायर उसको नहीं ले पा रहे लोड को, तो गाड़ी अनइवन चलेगी। तो सेम वे आपकी डोर है, उसमें आपने वेट बढ़ा दिया तो रोलर और हिंजेस उसके लटक जाएंगे, राइट? आपने कस्टमाइजेशन करा बट कस्टमर को उसमें लीकेज होगा फिर। तो यू वोंट बिलीव इट, वो इतने पर्टिकुलर थे कि सब कुछ कर लिया, देन वी सजेस्टेड और सॉल्यूशन दिया। दूसरा एक एग्जांपल था कि आगरा में हरी पर्वत पे एक होटल था, हॉलीडे इन, देन इट चेंज टू रेडिसन। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 12-13 का है शायद वो। तो दैट जनरल मैनेजर कॉल्ड मी अप, ही रेड माय ब्लॉग, 13 या 14 है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मेरे पास है उनकी डिटेल अभी भी। So, I visited the property. Then, I visited and I'll tell you some insight कि मुझे मैनेजर ने बताया कि सर, हम फॉरनर्स को रोड साइड रूम नहीं देते, बट कभी कभी शादी ब्याह में होटल बुक रहता है तो हमें रोड साइड देना पड़ता है। तो हमने 2 गार्ड केवल रात को कुत्ते भगाने के लिए रखे हुए हैं। उनका काम था रात को कुत्ते भगाओ। तो बिकॉज उन्होंने लोकली ढूंढा, जैसे हरिद्वार में ढूंढ रहे हैं गौरव जी, लोकल ढूंढा, लगाए ग्लास, सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि नॉलेज इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। इंडस्ट्री में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है कि परफॉर्मेंस पे बात करी जाए। इंडस्ट्री क्या है कि सब कोई चाह रहा है कि मेरे ब्रांड को स्पेस मिल जाए, मेरी सेल बढ़ जाए, बट ये नहीं देख रहे मेरे प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है। उसको रात को नींद आ रही है मेरे प्रोडक्ट से। दूसरा देखिए कि ग्लास से केवल आपके साउंड, इनविजिबल बेनिफिट तो मैंने बता दिए, एक विजिबल बेनिफिट भी है कि आज आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े हाई एंड घरों में खाली ग्लास लग रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि इतने बड़े ग्लास हैं, ये सेफ्टी है ही नहीं, कैसे रह रहे हैं। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, जो आपकी कार की विंडशील्ड होती है उसमें लैमिनेटेड ग्लास होता है, राइट? इन केस ऑफ एक्सीडेंट, ग्लास, उसका पर्पज रहता है कि इम्पैक्ट हो तो ग्लास ड्राइवर और को पैसेंजर पे ना गिरे, टूट। और साइड विंडोज में टफंड होता है, टफंड ग्लास जब टूटता है उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और फ्रंट ग्लास लैमिनेटेड होता है कि ग्लास टूट के गिरेगा, ड्राइवर हर्ट हो जाएगा। उसके बाद एयर बैग होते हैं, अगर वो ग्लास टफंड ले लिया तो एयर बैग को भी अफेक्ट करेगा, राइट? इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। अब टफंड ग्लास लिए रखा जाता है कि अगर गाड़ी कहीं फंस जाए तो उसे निकाल पाए। सो एज आई सेड, कानपुर बिजनेस में भी अगर फायर एग्जिट प्लान या वो सब होता तो वेंटिलेशन तो आज वो होते हमारे साथ। तो अब क्या है कि जब ये बर्गलर रेजिस्टेंस ग्लास होता है कि ग्लास टूटेगा नहीं, आप पत्थर मारेंगे ग्लास में क्रैक आ जाएंगे बट पेनिट्रेट नहीं होगा। बुलेट प्रूफ ग्लास, हाँ, बुलेट प्रूफ। जैसे कि आपने साइबर ट्रक एलन मस्क ने, तो लोगों ने सोचा कि वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ था, वो 1 किलो की जब वो बॉल उस पर मारी गई थी तो ग्लास में क्रैक आ गए। नॉर्मल ग्लास में वो पार चली जाती। बुलेट प्रूफ ग्लास कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता। कार में अगर बुलेट प्रूफ ग्लास है तो आप समझ लीजिए कि मोटराइजेशन नहीं हो सकता, फिर आपको विंडो को वैसे ही रखना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जितनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती है उनका ऊपर नीचे नहीं होता है? नहीं, क्योंकि वेट इतना हो जाता है, मोटर है ही नहीं कैपेसिटी, क्योंकि ग्लास इज थिकर एज पर द बुलेट टाइप। अगेन, बुलेट कैसी है कि असॉल्ट राइफल है, AK-47 है, या आपकी तमंचे की गोली है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कैसी आपको बुलेट करनी है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है, हम पॉइंट से हट रहे हैं। कॉस्ट डिपेंड करती है कस्टमाइजेशन पे, करेक्ट। तो फिर आप 1.5 लाख खर्च करके क्या रात को सो पा रहे हैं? अब सर ने हरिद्वार में घर बनाया है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या डॉग बार्किंग की साउंड आती है? आती है तो नाइट विंडो जिम्मेदार है। आपके घर में अगर ठंड है तो उसके लिए भी विंडो जिम्मेदार है। आपके घर में समर में हीट है, उसके लिए भी कुछ हद तक विंडो जिम्मेदार है। आपके घर में अगर पानी आ रहा है रेन का तो विंडो जिम्मेदार है। आप इन चीज़ों से विंडो को सोचना शुरू कर दीजिए। कंपनीज नहीं बताएंगी, हम एज ए कंज्यूमर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। और यही टॉपिक था कि मुझे इंस्पायर करा कि आई शुड इन्वेस्ट माय करियर इन दिस इंडस्ट्री। क्योंकि क्या होगा कि चलना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी टीम को बोलता हूँ, वी आर अनसंग हीरोज।
सबसे अनग्लैमर, मतलब ग्लैमर नहीं है। हम लोग जब एंटर होते हैं घर में तो कोई कुछ भी नहीं होता, उबड़ खाबड़ होता है। फिर क्लाइंट तभी घर में एंटर करने देता है जब उसे प्रॉब्लम होती है, Correct. वरना क्या, अच्छा ग्लास लग गया, ठीक है जी हाँ, जाओ। लग- मतलब बट ये नहीं है जैसे फर्नीचर, ये सोफा है, आप इसे फ्लॉन्ट कर सकते हैं, आई हैव इटालियन फर्नीचर, आई हैव दैट पर्टिकुलर ब्रांड, सो यू नो, बट आप उसको फ्लॉन्ट नहीं कर सकते। तो वो उस वजह से जो इनविजिबल प्रॉब्लम्स हो रही हैं ग्लास से, लोग भूल गए हैं कि यू नो दीज प्रॉब्लम्स कैन बी टेकन केयर ऑफ। स्ट्रेस हो रही है, इम्यूनिटी वीक हो रही है, जैसे मैंने अपनी बेटी का हाँ जी, एग्जांपल दिया, हाइड्रोक्सी डी लेवल लेस देन 10 है, और यू नो एज ए पर्सन मुझे गिल्ट फील होती है कि मैं उसको डे लाइट में नहीं रख सकता, नहीं रख पाया, नहीं रख मैंने इसीलिए ओपनिंग बनवा रहा हूँ। नाउ आई रियलाइज द प्रॉब्लम। सो यू नो ये छोटी छोटी बातें हैं जो लगता है कि हाँ करना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए इस प्रोडक्ट पे और एक सही डिसीजन लेना चाहिए। तो अब 1.5 लाख से 3 लाख की जर्नी, जहाँ 75 लाख का घर रहे, तो सर अपना बजट बढ़ाइए, सही सवाल पूछिए। अगर सवालों के जवाब नहीं मिल रहे तो समझ जाइए ये कारपेंटर, ये कॉन्ट्रैक्टर, ये आर्किटेक्ट सही नहीं है, कि उनको नॉलेज नहीं है और इसके आप बारे में। अपग्रेड करिए। आपको हरिद्वार में आर्किटेक्ट्स भी मिल जाएंगे, हरिद्वार में वो मिल जाएंगे। नहीं तो जैसे आपने जो भी यूज़ करी कंपनीज हैं, उनको आप डोर विंडो, यूपीवीसी डोर विंडो, एल्युमिनियम डोर विंडो नाम से सर्च करेंगे, गूगल में उनके रिव्यूज़ होंगे। करेक्ट। गूगल में रिव्यूज़, फेक रिव्यूज़ कम है एज कम्पेयर टू अदर ऐप्स, तो आप उनमें देख सकते हैं कि आपकी विसिनिटी में क्या लोग हैं, क्या देन वो अपनी हाँ, रिक्वायरमेंट और बताइए क्या और उसके ऐसे ही उन्होंने करा है। हम्म, तो प्राइस की जो बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कस्टमाइजेशन पे प्राइस डिपेंड करता है कि कस्टमाइजेशन हम किस हद तक ले रहे हैं। correct. तो ब्रांड के नाम पे अगर आप प्राइस दे रहे हैं तो आपको, आपने स्पेस दे दिया इसमें कि आपके साथ वो हो जाएगा। एक क्लाइंट का एक बनने की, एक लोकल है, एक ब्रांड है। लोकल होना चाहिए 3 लाख का, ब्रांडेड होना चाहिए 4.5 लाख का। अब मुझे देखना है, मैंने ब्रांड का लगा लिया, किसकी विंडो लगाई है, ब्रांड की लगाई है, साउंड आ रहा है, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, विंडो से कब साउंड रुकता है। तो अब ये बर्गलर रेजिस्टेंस मैंने बता दें, ग्रिल की जरूरत ही नहीं है, जितना ग्रिल भी स्क्रू पे टिकी है। मॉडर्न पहले ग्रिल थी कि वो लकड़ी में होल फास्ट से लगती थी, हाँ जी, अब जो ग्रिल लग रही है वो स्क्रू पे टिकी है। आप चोर को समय देंगे तो वो ग्रिल भी निकाल ले जाएगा। हो रहे हैं गाजियाबाद में, आप पढ़ सकते हैं, डेली ऐसे केसेस आते हैं कि वो ग्रिल निकाल के चोरी कर ली। पर मैं आपको बताऊं, बर्गलर रेजिस्टेंस ग्लास लगाएंगे। अब जैसे आपका दरवाजा है, इसमें सिंगल पॉइंट लॉक है, सिंगल पॉइंट लॉक है, राइट। तो आप लकड़ी का दरवाजा लेते हैं, उसमें शूट बोल्ट या हिंदी में कहें चटकनी होती है, और सेंटर में लॉक होता है, 3 जगह से लॉक होता है। यस। तो जो नई क्वालिटी के यूपीवीसी एल्युमिनियम है, उसमें मल्टी पॉइंट लॉकिंग रहती है। दरवाजा लॉक करेंगे, दरवाजा 3 जगह लॉक हो गया, कोई भी उसे खोल नहीं सकता। ग्लास आपने बर्गलर रेजिस्टेंस से ऐसा ग्लास लिया, अब आपको 1.5 लाख से जो 3-4 लाख की जर्नी करनी है, इसको इन्वेस्ट करिए, अपनी नॉलेज इन्हांस करिए, अपनी रिक्वायरमेंट समझिए, बायोमेट्रिक लॉक लगाइए, बट वेंटिलेशन सिस्टम रखिए। करेक्ट। ये देखिए, अब एक एग्जांपल और है, जैसे मैंने घर लिया, फ्लैट लिया, अब मेरा घर जो है और मेरे पड़ोसी का घर है, उसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि मेरा घर में क्या है कि सन ईस्ट में निकलता है पूरे दुनिया भर में, ओके। और वेस्ट में छुपता है। अब क्या होता है, ईस्ट में मॉर्निंग सन इतना हीटअप नहीं होता, दोपहर बाद क्या होता है, बिल्डिंग के अप्लाइंसेस भी और लोगों की वजह से बिल्डिंग भी हीटअप हो जाती है। अब आप सोचिए, आपकी छत गर्म हो गई, आपका घर की जो विंडो है वेस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, और मेरे जो पड़ोसी है उसकी नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग है, उसके घर में हीट इतनी नहीं आएगी, मेरे घर में हीट ज़्यादा आएगी। तो कैन डू आर वी कंसीडरिंग दीज ग्लासेस की जिससे हीट कंट्रोल हो जाए? क्योंकि ये हीट आपके समर में एयर कंडीशनिंग का बिजली का बिल बढ़ा रही है। अब इनविजिबल चीज़ें हम नोटिस नहीं करते, बारीकियां में नहीं जाते, क्योंकि लगता है अरे ठीक है, इतना क्यों सोचें। नहीं सर, बीइंग ऑनेस्ट, मैंने भी मतलब आई एम लिसनिंग टू यू और मैं सोच रहा हूँ, मैंने खुद ही कभी ये नहीं सोचा कि हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि इस तरफ घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, कभी सोचा ही नहीं कि शीशे ऐसे होने चाहिए, दरवाजे ऐसे होने चाहिए, इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। तो सर 2013 से सिंस यू हैव स्टार्टेड दिस ब्लॉग, तो आपको लगता है कि इंडिया में थोड़ा चेंज आ रहा है? मतलब इट्स ऑलमोस्ट 11 years नाउ कि यू आर राइटिंग दैट ब्लॉग, तो पीपल आर मूविंग इनटू दिस इंडस्ट्री, टॉकिंग मोर अबाउट दिस इंडस्ट्री, या अभी भी बहुत कम है? Yes or no, both. Like you know, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कुछ बुरी हो रही हैं। लाइक एज आई सेड कि लोग लगा रहे हैं विंडो, बट पीपल, एज आई सेड कि उनके बजट में डोर विंडो सबसे लो कैटेगरी रहती है नॉर्मली हाउसेस में, होम्स में, कि विंडो है लगाओ, वेंडर हायर करो, रेफरेंस चेक कर लो, कर दो कोई तो। बट अच्छा ये हो रहा है कि कई ब्रांड्स आ गए हैं, तो मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ, वो अपना, उनमें भी कुछ अच्छे लोग हैं, दे आर ट्राइंग टू एजुकेट, ट्राइंग टू इंस्टॉल गुड प्रोडक्ट्स। तो
बुरा इसलिए कि प्राइस बैंड अभी तक लोगों की थिंकिंग बदल रही है. इट विल टेक टाइम, एज आई सेड, इट्स अ जर्नी. Yeah. यूरोप में मेजर चेंज आए थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि डिवेस्टेशन हो गया था, पूरा यूरोप खत्म हो गया था. अब फिर से स्टार्ट करा गया. तो उसके बाद ये सिस्टम कंपनीज या एल्युमिनियम यूपीवीसी कंपनीज, इनकी सबकी आप ओरिजिन देखेंगे 50s के बाद ही मिलेगी, 60s के बाद. तो कंपनी स्टार्टेड मेकिंग, इंडिया में वो टाइम अब है. Hmm. इंडिया के लिए सब लोग इसीलिए देख रहे हैं कि हर इंडस्ट्री में नेसेंट स्टेज है. हर ब्रांड एक एक मार्केट दिख रही है. जहाँ प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है. तो मैं जैसे बोला कि यस और नो बोथ, कि जो प्राइस में जा रहे हैं वो गलत जा रही है इंडस्ट्री. Right. प्राइस में जा रहे हैं, या तो एक क्या हो रहा है कि मुझे सबसे सस्ता लगाना है, या फिर मुझे बायोमेट्रिक लगाना है, और मैंने लगा लिया, फिर ये हो रहा है. आप देखिए, तो ये एक एग्जाम्पल है, मुझे इसके बारे में पता था, मैं आपको बता रहा हूँ. और ऐसी कई केसेस होते हैं. एक एग्जाम्पल था, आप शायद देखते हो कि लोगों को एक लारा दत्ता ने एक इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, आपने देखा हो, कि महेश भूपति के जो विम्बलडन के टॉवल्स थे, उनके घर में पानी आया, उन्होंने लगा दिया वहाँ पे. Right. तो वो बहुत पहले, 1 साल 2 साल हाँ जी, पहले हाँ जी, की. पुरानी. अब वो जो पानी आ रहा था, बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज स्लाइड एंड फोल्ड. अब वो स्लाइड फोल्ड में क्या होता है, नीचे ब्रश होता है, वो एयर टाइट नहीं होती. अच्छा, जैसे मेट्रो में भी नीचे ब्रश, मेट्रो हाँ. के दरवाजों में भी नीचे तो ब्रश. वो उस प्रोडक्ट की लिमिटेशन है, उसमें पानी आएगा ही. तो अगर आपकी विंडो के ऊपर छज्जा नहीं है हम्म. और आप स्लाइडिंग लगा रहे हैं जिसमें ब्रश है, तो पानी आएगा. आएगा ही. तो आपको देखना है कि छज्जा नहीं है, और आपके रीजन में बारिश ने भी पैटर्न चेंज कर दिया है. एक ही जगह पे इतने रेनफॉल हो जाता है कि अनबिलीवेबल. जैसे मनाली में आया, गाड़ियां बह गई. तो हाँ जी. अल्टीमेटली अब रेन पैटर्न चेंज हो गए, आज भी बारिश हो रही है. करेक्ट. तो उसकी वजह से हमें ये देखना चाहिए कि क्या मेरी ओपनिंग में आगे छज्जा है, बारिश का पानी. तो मैंने बोला कि आप ये देखिए कि बेनिफिट, थर्मल इंसुलेशन, नॉइज इंसुलेशन, ये क्योंकि ये चीज़ आपको, आप आज नहीं सोचेंगे तो 15 साल लगातार सोचेंगे. फिर करेक्ट. आज से सोचना शुरू कर दीजिए. घर बनाने से पहले आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. And sir, if anyone wants to reach out to you, so what is the best way to get in touch with you? Not promoting you or doing any, just because आपका blog मैंने भी पढ़ा है, it's very illustrative, very detailed. So I'm pretty sure कि after this podcast, I'll put the blog link in the description. They'll go through it, they'll read out. So how will they reach out to you? Do you have all your details mentioned in the blog itself or how? रोहन जी, जैसे मैंने बोला था कि मैं भी एक कंपनी रन कर रहा हूँ, बट आई डोंट वांट टू प्रमोट, बिकॉज ये आपका इनिशिएटिव था. तो ब्लॉग है, उस पर मेरा मेल आईडी भी मेंशन्ड है. पीपल कैन राइट टू मी एंड अंडरस्टैंड इफ दे हैव एनी. And they can also Yeah. mention their problems Yes, in yes, detail. And do you respond to? यस, इवन मैं आपको रिसेंट बताता हूँ. देयर वाज ए एकॉस्टिक कंसल्टेंट इंजीनियर फ्रॉम इजराइल. दैट गाय हैज रिटन टू मी और ही आस्क्ड मी ट्रेनिंग सेशन फॉर एकॉस्टिक बाय विंडोज. उसका जो मैंने ब्लॉग पे भी टेस्टिमोनियल डाल रखे हैं कि पीपल कैन गो थ्रू इट. तो आई ट्रेंड हिम. सो पीपल नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, दे आर राइटिंग फ्रॉम ग्लोबल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहीं गैप है. जिनको यूपीवीसी के बारे में पता है उन्हें ग्लास को नहीं पता है, जिन्हें ग्लास के बारे में पता है उन्हें एल्युमिनियम के बारे में नहीं पता. तो एक मिला जुला. अब मुझे तो मतलब है कि मैं इस रूम में बैठा हूँ, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरे वहाँ बाहर जो बातचीत कर रहा है उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए ना. Correct. वो क्यों आ रही है उसके लिए जिम्मेदार डोर है. मुझे यहाँ बेनिफिट देखना है. अब वहाँ पानी आ रहा है मेरे घर में, उसका रीज़न वही है. तो एज आई सेड, नॉलेज, सोशल मीडिया हैज़ डन ए वंडरफुल जॉब इन वन वे दैट they have created avenues, everyone can be do the citizen journalism और citizen can share their knowledge. तो हम लोग भी यही है कि जैसे मैं कर रहा हूँ तो सारे लोग करें इस तरीके से. और तो people can write to me, मैं फिर उसी पे टॉपिक पे आता हूँ. मेल आईडी मेरी मेंशन्ड है एंड दे कैन. तो सर, डोंट यू फील, जैसे यू ओनली मेंशन कि सोशल मीडिया इज द न्यू मार्केटिंग थिंग, एंड डोंट यू फील कि ब्लॉग के थ्रू इट माइट स्टिल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट टू द बिगर ऑडियंस? आपने कभी नहीं सोचा कि लेट्स यूज सोशल मीडिया टू गार्नर मोर नॉलेज टू दी फोक्स? मतलब ईजिली एक्सेसिबल है, आप इंस्टा पे या फेसबुक पे अगर आप यही छोटे छोटे व्हाट यू राइटिंग इन द ब्लॉग्स, कभी आपने नहीं सोचा कि मैं अगर वहाँ पे ही बना के ये सब डालूँ तो ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर पाऊँगा? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं. बट मैं व्हाट आई वांट कि आई वांट टू पुट विद फैक्ट्स. whatever I want to write with
with the background कि people can check the background, क्योंकि as I said लोगों को मिले बट सही ज्ञान मिले। करेक्ट। तो 20 सेकंड की या 4 सेकंड की अटेंशन स्पान में मेरा मानना है कि लोगों को नहीं मिलेगा, बट मुझे लगता है कि आज के एक्सपीरियंस में मैं आपको आज ही का शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए पॉडकास्ट करने में, या क्योंकि लोगों को बताना चाहिए इस चीज़ के बारे में। मतलब आई एम रियली थिंकिंग अबाउट डूइंग, बिकॉज जल्दी रीच आउट कर पाएंगे आप हाँ ज़्यादा ऑडियंस को। आई एम नॉट सेइंग कि ब्लॉग नहीं पढ़ेंगे, बट going on social media like YouTube, Instagram, it's Yeah. easy for them to access Yes, that yes. information. And पढ़ने से ज़्यादा आज भी मुझे लगता है कि लोग शायद सुन के ज़्यादा समझते हैं, बिकॉज आपने जो एग्जाम्पल्स के साथ आज यहाँ पे बताया है उससे तो मतलब आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस इंडस्ट्री नाउ, आई वुड ऑल्सो रिसर्च मोर अबाउट इट, बट दैट मेक्स इट मोर easy to gather knowledge जब आप examples के साथ explain करते हो. And when we read, there are avid book readers as well, उनको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है, but I'm thinking of the larger Yeah. population. I feel कि videos, podcast, इनके through ज़्यादा easily आप information reach out करवा पाएंगे उनके लिए, and easily उनको भी मज़ा आएगा सुनने में भी. हाँ बिल्कुल, वो एक अच्छा वे है टू रीच मोर पीपल, टू शेयर योर, बिकॉज व्हेन यू शेयर विजुअली, व्हेन यू शेयर विद वीडियो, पीपल अंडरस्टैंड वेरी Yes. क्विकली. Yes, you're right. So it was nice talking with you, sir. We actually had a very interesting topic to talk about, and Right. from today onwards, I'll also make sure to keep investigating about this industry, gaining more knowledge about this industry. And as I mentioned in the beginning कि मैं भी अपना घर बनवा रहा हूँ, तो I'll make sure कि अब मैं पूरा ध्यान दूंगा वहाँ पे कि मेरी क्या requirement है, कि मुझे Right. dog barking से problem है या noise insulation, thermal insulation, whatever I would like to get it done, I'll definitely get in touch with you for a solution for that. Any parting thoughts or any message that you would like to give to our audience? Right. I would say only one word. There is a more to a window than meets the eye. You know, when we say computer, when we say window, computer ध्यान में आता है. Right. So we need to think about door window as a benefit based, कि मेरी requirement क्या है. So there is a more to a window than meets the eye. That's my message. Thank you very much, sir. Nice message that you have left for our audience to think about. Right. Hopefully, they will start researching more about it, and Right. they'll reach out to you via your blog. And or you have already mentioned that there's an email address mentioned too, where they can send their questions and queries. Nice talking to you. So, guys, we had an engaging conversation with Mr. Shivendra Pratap Singh. Today, we discussed about unseen and untalked topics about like thermal insulation, noise insulation, soundproofing, burglar resistance glass. I know कि हम ये सब टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, and maybe back of the mind we have never thought about it as well. But after watching this episode, I am pretty sure कि आप सब अपने घर पे ये सोचेंगे, because ये सारी normal problems हैं, dog barking की voices और noise I would say. Then कहीं पे गाने प्ले हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और हमें घर तक सुन रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, या ठंड में हमारा घर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, गर्मियों में हमारा घर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है. तो दिस पॉडकास्ट वॉज ऑल अबाउट टू गिव यू गाइज अ पर्सपेक्टिव कि इन सब का सॉल्यूशन भी है, बट हम सोचते नहीं हैं इसके बारे में. सो आई वुड रिक्वेस्ट whenever you get time, go through the blog on Quora. The link is mentioned in the description, and share all the feedback and problems and reach out to him, and he'll definitely get back to you. Now we are signing off. Thank you for watching this episode, and we'll keep bringing you these kind of topics in the future as well. This is your host and your dost Rohan Devgan.